ساتھ آج اسکائپ انٹرویو پہ جو مہمان موجود ہیں وہ بہت ہی کامیاب سیاستدان ہیں، جو ہے وہ میڈیا کی ایک بہت بڑی پرسن بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب اکبری صاحبہ. ملٹیپل خاتون ہیں، بہت سے انہوں نے خدمات اپنی سر انجام دی پالیٹکس میں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ٹی وی کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی رکن بھی ہیں. وہ تو شامل کرتے ہیں انہیں اپنے پروگرام میں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے سیگمنٹ کا جو انٹرویو ہے وہ اپنے مہمان کو لائیو لیتے ہیں، اسکائپ پر ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے آج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے مہتاب اکبری راشدی صاحبہ کو، جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور اپنے فرائض جو ہیں وہ ڈفرینٹ شعبے کے لحاظ سے انجام دیتی ہیں. یہ سابق سیکرٹری اور ٹورزم بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ کامیاب سیاستدان بھی ہیں، میڈیا کی بڑی شخصیت بھی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہم ٹی وی کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی رکن کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتی ہیں. ایم آئی آپ نے کچھ زیادہ بتا دیا. ٹھیک ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے کیونکہ بہت وہ ہے تو ہم اپنا انٹرویو شروع کرتے ہیں. تو شامل کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں. مہتاب اکبر راشدی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اس زمانے میں یہ سوال زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم بہت عجیب وقتوں میں ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور خیریت پوچھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو بالکل اللہ کا شکر ہے اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. جی بالکل اللہ کا شکر ہے بلال. ٹھیک ہے، اچھا مہتاب راشدی صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، میں جانتی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، کووڈ-19 کی وبا سے ہم سب گزر رہے ہیں. پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے اور لیکن ماشاء اللہ سے پاکستان کا گراف جو ہے وہ کافی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. وہاں جتنی اب بات ہو رہی ہیں، وہاں جتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں دن پر دن، وہ کافی جو ہے وہ خوفناک جو ہے وہ صورتحال ہے. لیکن پاکستان، اللہ کا بہت شکر ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت بہادر لوگ رہتے ہیں جو صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور کسی وبا اور کسی آفت سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. اور بالکل صحیح ہے، یہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہے اللہ پر کہ جو ہوگا اللہ چاہے گا. لیکن لاک ڈاؤن جو ہوا سندھ میں، سندھ سے شروعات ہوئی لاک ڈاؤن کی، جو وقتی طور کے لیے ہوا، ٹائملی ہوا، لیکن مسلسل وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہاں دیکھتی ہیں ہمارے ملک کو پازیٹیو وے میں بھی اور نیگیٹو وے میں بھی، کہ لاک ڈاؤن سے کیا پازیٹیو اثرات پڑے ہیں اور نیگیٹو اثرات جو ہے کیا پڑ رہے ہیں اور آگے کتنے خطرناک جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہمارے ملک پر پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو جس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار ہیں، صرف ہم ہی نہیں ہیں لیکن پوری دنیا ہے جو اس سے نبرد آزما ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ملک ہیں جو آپ یوں کہہ دیجئے جی فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے، لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک تو وہ ملک ہو گئے. دوسرے ملک اس سے تھوڑے سے کم ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ ہم کبھی ترقی یافتہ ہونے والے ملکوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب ہم شاید پیچھے چلے گئے ہیں بہت بدقسمتی سے. اور جو ریشو ہے آپ کا تعلیم یافتہ ہونے کا، اس کے بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو شماریات ہیں، وہ بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مانے اور کبھی دل چاہتا ہے کہ ان پر یقین نہیں کیا جائے، کیونکہ کریڈیبلٹی کا بڑا ایشو ہے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کو بنانے میں اور بتانے میں اور اس پر کوئی بھی چیز پلان کرنے میں. تو جب آپ کے پاس فگرز ہی صحیح نہیں ہوتی ہیں، اسٹیٹسٹکس ہی صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو پلاننگ ساری الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اب اسی بیماری کے سلسلے میں جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ لاک ڈاؤن. سمجھا گیا کہ یہ سب سے پہلا تو علاج یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا بند کر لیں، کیونکہ جس طرح کی چیزیں بتائی گئی اس بیماری کے سلسلے میں، اس میں سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون یہ بیماری اٹھا کے پھر رہا ہے. اس کے جو چیزیں ہیں یا جو سمپٹمز ہیں وہ ایک دم فوراً نہیں پتہ چلتے، اس کو ظاہر ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. پھر ہمارا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کریں.
तो उसके लिए जो टेस्ट किट्स थी वो भी हमारे पास नहीं थी। तो एक अजीब तरह का समा बन गया कि पहली बात तो लोगों को इस चीज के लिए कायल करना कि ये कोई खतरनाक बीमारी है और किसी को किसी वक्त किसी से भी लग सकती है, लिहाजा अपने आप को आप अलहदा करें। वो चीज इसलिए मुश्किल हुई कि लोगों के पास एक तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं पहुंच पा रही थी, लोग इसको सही कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे और वो ये कह रहे थे हम तो ठीक ठाक है, हमें क्या हो सकता है। लेकिन और दूसरी जो चीज थी वो ये कि लोगों का गुजर सफर का तरीकेकार, लोग रोज कमाने वाले सुबह जाके कुछ न कुछ कमा के कोई कोई रेडी लगाता, कोई ठेला लगाता, कोई ऐसे ही बैठ जाता, तो वो तमाम लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए कि वो अब क्या करें। अगर घरों तक महदूद रहते हैं तो खाना कहाँ से आएगा, और अगर निकल आते हैं तो जाहिर है वो हुकूमत रोक रही है। सिंध में लॉकडाउन चूंकि पहले हुआ और उन्होंने कोशिश की कि वो तरीक़ेकार मौसर होना चाहिए, तो उस पर वो उन्होंने जितना भी कर लिया और काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे पास यानी वो उसका जो एंट्री पॉइंट हो रहा था वो कराची हो रहा था, क्योंकि कराची से ही ताफ्तान वो जो ईरान से लोग आए वहीं से आ रहे थे। हमारी जो सरहदें हैं वो अफगानिस्तान से भी मिल रही हैं, वो ईरान से भी मिल रही हैं, वो हिंदुस्तान से भी मिल रही हैं। थरपारकर ये मतलब ये तमाम ये सिंध के वो ये बॉर्डर्स थे जो इन मुल्कों से मिल रहे हैं। फिर ये देखा गया कि आपकी आना जाना कहाँ से ज्यादा हो रहा है, तो ईरान से ज़ायरीन आए अपने, और उसके साथ पता चला कि एकदम से नंबर जो हमें मिलना शुरू हुआ। फिर कुछ ये भी हुआ कि बजाय इसके कि लोग इन हिदायत पे अमल करते, शुरू-शुरू की चीज़ थी, न हुकूमत को पता था, न जो सिक्योरिटी रखने वाले थे, पुलिस वाले, न रेंजर्स, किसी को भी उन प्रोटोकॉल्स का नहीं मालूम था कि प्रोटोकॉल होना क्या चाहिए। इसमें किसी का भी कसूर नहीं था, बस लेकिन हम तैयार नहीं थे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, और इसी नॉन प्रिपेयर्डनेस में बहुत सारी चीजें मैसअप हो जाती हैं। तो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश की गई कि उसको कंट्रोल किया जाए, और उसमें ये हुआ कि 2-3 सेंटर्स बना लिए गए, कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आगे आ गए। इसी तरह से सखर में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, वहाँ पर इमीडिएटली उनको टेस्टिंग वगैरह हुई, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। तो उसमें ये हुआ कि बहुत कम नंबर्स सामने आए और लोग जो है वो एक तादाद जो है वो ठीक होके निकल भी गई। लेकिन एक और जो खतरनाक चीज हुई कि बहुत सारे लोग कहीं इधर उधर से आगे पीछे से भी खिसक के घरों को चले गए, और वो ये एक्सपेक्टेड था कि 2 हफ्तों के बाद एक बड़ी तादाद अचानक से सामने आएगी उन लोगों की जिनको शायद पता नहीं था, जो जानते भी थे लेकिन घरों में चले गए, और घरों में भी रह के उन्होंने किसी को नहीं बताया। और अब आप ये देख रहे हैं कि कल से कराची में जो एक तादाद बढ़ रही है, और जो हॉस्पिटल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास डेड बॉडीज बहुत बहुत आ रही हैं, और सच पेशेंट्स या वो वाले मरीज जो बिल्कुल आखिरी सांसों पर वो चल रहे हों, उनको आखिरी वक्तों में लोग लेके और हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं, और बदकिस्मती से बचा नहीं पा रहे हैं उनको। लेकिन सिम्टम्स किस वजह से डेथ्स हो रही है वो कोई इस वक्त उसको कोई वेरीफाई नहीं कर पाता, लेकिन ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो लॉकडाउन का एक फायदा तो ये हुआ कि लोगों को आस्ता आस्ता समझ आने लगी कि हमें बंद रखना है अपने आप को। स्कूल्स फौरन बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गई, मार्केट्स बंद हो गए, शॉपिंग सेंटर्स बंद हो गए, और एवरीथिंग इज क्लोज। लेकिन जो तकलीफ की बात है जो आप नेगेटिव पूछ रही हैं, वो ये कि लोगों का जो जिंदा रहना है और उनकी जो 3 वक्त की रोटी जो है, रोटी रोजी का बड़ा मसला हो गया है। और एक आम आदमी या कुछ एनजीओज या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने तौर पर पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके वसाइल इतने नहीं हैं कि वो सारे लोगों तक पहुंच जाए। कोई आप कितने लोगों को कैटर करेंगे। गवर्नमेंट अब आई है, उन्होंने अपने मुख्तलिफ फंड्स निकाले हैं, एहसास प्रोग्राम आ गया है, और इसी तरह से कैश के पैसे भी दिए जा रहे हैं, सुना है राशन भी बांटा जा रहा है। लेकिन आउटरीच जितनी हुकूमत की हो सकती है
वो एक एनजीओ की जिसके वसाइल महदूद हों, उनमें फ़र्क है। तो अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हम कितने लोगों को दे पाए हैं और दे रहे हैं या ख़्याल रख रहे हैं, ये अभी मेरा ख़्याल है ये सबको किसी को मालूम नहीं है। इस पर सियासत भी बहुत काफ़ी चल रही है। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी हवाले से था, राशन और इमदाद के हवाले से। जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि घर-घर जो है वो राशन बाँटा गया है और दूसरी तरफ गरीब रो रहा है कि उसके घर में नहीं है खाने को। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि रात को 2 बजे गरीबों के गेट के बाहर राशन रखा गया है, और अगर रखा गया है तो गरीब क्यों रो रहा है? 2 तरह की चीज़ें हैं। मैं हुकूमत के कहने पे शक भी नहीं करूँगी, और जो चीख रहा है उस पर भी शक नहीं करूँगी। लेकिन हम लोगों का एक मिज़ाज अजीब-सा बन गया है। हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, कहीं राशन बँट रहा हो या पैसा मिल रहा हो, तो आप ये देखते हैं कि कितनी धक्कम-पेल होती है। और एक जो मैंने सबसे बड़ी बात शुरू में कही थी कि क्रेडिबिलिटी का बड़ा फुकदान है। हमारे पास सच बोलने वाले लोग जो हैं, अब उस पर भी आदमी को यकीन करते-करते थोड़ा वक़्त लगता है कि इतनी सच कौन बोल रहा है। अगर हुकूमत सच कह रही है, तो हमें एक वक़्त में मान लेना चाहिए कि चलिए भई हुकूमत सच कह रही है, यकीनन किया होगा क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और दूसरी बात, अगर एक आदमी कहता है कि हमें कुछ नहीं मिला, तो हम उस पर क्यों ना यकीन करें कि क्यों नहीं मिला। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है, इस तरह तीसरे किस्म के भी लोग हैं और आपने इस तरह की वीडियोज़ देखी होंगी, जो कि वो भी काफ़ी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, कि लोग जो हैं वो जाके दुकानों पे जाके कहते हैं कि जी हम ये राशन बेचना चाहते हैं, उसके बजाय मुझे शैम्पू चाहिए, मुझे फलाँ चीज़ चाहिए, मुझे साबुन चाहिए और कोई चीज़ चाहिए, और या पैसे दे दो। तो उससे सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कुछ और भी राशन है? तो आदमी कह रहा है हाँ, हाँ, मेरे पास 4-5 मन राशन मौजूद है। तो उसमें उसमें क्या है, आपकी ज़हनियत बड़ा काम करती है। हमारे पास एक जो ईसार का जज़्बा है वो ख़त्म हो गया है, और एक जो सेल्फिशनेस है, खुदगर्ज़ी जो है वो हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और लोगों को कुछ यकीन नहीं होता कि जो मुझे आज मिला है वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिहाज़ा मैं जितना बटोर सकता हूँ मैं बटोर लूँ, मेरे पास होना चाहिए। तो एक ही घर के 4 अफ़राद एक हर कोने पे खड़े हो जाते हैं, और वो उनको जितना वो समेट सकते हैं वो समेटते हैं, और जो सफ़ेद-पोश तबका है, जो किसी को कह नहीं सकता, वो चुप रहता है, वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, और उस तक शायद लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके अड़ोस-पड़ोस वाले हों और उनको पता हो और वो मदद कर दें तो ठीक है। हुकूमत के पास मुझे नहीं मालूम कि तरीक़ेकार क्या है कि आप हर एक आदमी के बाहर उसमें रख दें और सबको राशन पहुँच जाए। हुकूमत कर सकती है, उनके वसाइल हैं, उनकी यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, रेंजर्स हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो चीज़ जो यकीनी बनानी पड़ेगी 2 तरह से, कि एक तो लोगों को भी सच बोलना होगा, और एक हुकूमत को भी अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको भी ज़रा बढ़ाना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में जो ज़ख़ीराखोरों को जो है वो जुर्माने का और मतलब कैद का जो ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से, जो ज़ख़ीराखोरी करेगा, उसको जो है जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उसको जो है वो सज़ा भी होगी। तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के इक़दामात या इस तरीके के ऐलानात गरीब तबके के लिए जो है वो फ़ेयर करते हैं? मतलब इससे गरीब तबके के लिए हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँगी? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई आज की तो बात ही नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन करता है ये भी सबको पता है, और क्या हुकूमत को नहीं मालूम कि कौन कितना खरीद रहा है और मार्केट में कितना पहुँच रहा है, ठीक है ना? अचानक आपके पास एकदम पता चलता है कि जी आटा नहीं है, और गंदुम ख़त्म हो गई, फिर पता चलता है जी चीनी भी मार्केट से गायब हो गई। तो ये कैसे गायब हो जाती है? क्योंकि आपकी पैदावार तो बिल्कुल बहुत अच्छी होती है और हुकूमत खुश हो रही होती है। इस दफ़ा जी गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और हम पूरे साल भर के लिए हमारे पास बहुत है, और इतना है कि हम बाहर भी भेज सकते हैं। यही चीज़ फिर हम चीनी के लिए सुनते हैं, लेकिन ना उनकी कीमतें कम होती हैं, और नहीं जब वो मार्केट में चीज़ें आती हैं तो थोड़े दिनों के बाद वो गायब होना शुरू होती हैं। तो हुकूमत को सब पता होता है कि कौन खरीद रहा है और कहाँ छुपा रहा है, और ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ज़मीन के नीचे दफ़न हो रही है, लोगों के गोदाम हैं, बड़े-बड़े गोदाम होते हैं,
जहाँ पर ये चीजें रखी जाती हैं। जो इलाके की पुलिस है उसको पता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि लोगों को पता चले, और हुकूमत को खास तौर पर, कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बात यह है कि अगर हुकूमत इन तमाम चीज़ों का अदराक रखे, खबर रखे और बिल्कुल सख्ती के साथ अपनी रिट को इस्तेमाल करे और एक दफ़ा वो अल्लाह के सामने अपने आप को जवाबदार समझ के वाकई अपना अख्तियार इस्तेमाल करे, तो ये चीज़ कोई नामुमकिन नहीं है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़े भी। और न सिर्फ पकड़ना काफ़ी नहीं है, उनको सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए, उन पर जुर्माने भी होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता, और एक शेर कहने को, एक मिसरा कहने को दिल चाह रहा है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एतबार ही नहीं है। लोगों को, किसी को तो झूठ बोल रहे हैं, ये फलां आदमी जो है ये फलां का रिश्तेदार है, ये फलां का रिश्तेदार है। सब कोई ना कोई किसी न किसी का रिश्तेदार निकल आता है। लेकिन जो जो अल्लाह के बंदे हैं, जो खुदा की मखलूक है और जिसके ऊपर आपको हाकिम बना के भेजा हुआ है, उस हाकिम को के ऊपर खुदा की कितनी बड़ी नज़र है और वो कितना जवाबदेह है अल्लाह को, शायद ये चीज़ उनको कुछ डराए तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। वरना पता नहीं कुछ एतबार आता नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है वो सिर्फ नारेबाजी है, सिर्फ बयानबाजी है, या वाकई इस पर अमल भी होगा। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत से ऐसी फलाही इदारे हैं जो अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे इमदाद कर रहे हैं, रकम दे रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं घर जा जा के। तो इन ऐसे इदारों को, ऐसी फलाही इदारों को हुकूमत क्या सपोर्ट कर रही है? क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं और बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं कि ऐसे इदारे जो हैं हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि अगर वो कुछ करें तो हुकूमत एटलीस्ट उनकी मदद करे। तो हुकूमत का इस हवाले से कोई प्लान है? अम, मेरा ख्याल है हुकूमत को इस तरह से प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो फलाही अदारे जो हैं वो अबव द बोर्ड रह के सबकी मदद करते हैं। बहुत सारे फलाही अदारे हैं, आपके पास एधी है, आपके पास सैलानी है, आलमगीर ट्रस्ट है। कराची में तो एक से एक इदारा है और उनको उनके पास उनका मैकेनिज्म भी है, वो लोगों तक पहुंचते हैं। और हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि अगर सैलानी ये कह रहा है कि हम लोगों को खाना देते हैं, खिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो वाक़ई खिला रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर उनके होता है। फैसल अपना ईदी है तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं, छिपा है तो कर रहे होते हैं, आलमगीर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। हम आँखों से देखते हैं और जब हम आँखों से देखते हैं तो हम अपनी भी कोई ज़कात खैरात या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो हमें भी उनको देने में कोई एक एक लम्हा नहीं लगता और हम कह रहे हैं कि भई ये लोग जो है वो कर सकते हैं। तो अगर वो हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, तो हुकूमत को उन पर एतबार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो ये काम कर रहे होते हैं। अगर उनके पास, अगर अब वो तकलीफ में है और उनको अब ज़्यादा लोगों को कैटर करना पड़ रहा है, तो फिर हुकूमत को उनका अपना साथी बना के और उनके हवाले कुछ चीज़ें कर देनी चाहिए और उनसे कहें कि जी ठीक है, ये हिस्सा आपके हवाले हमने कर दिया, अब हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते तो हमें गाइड कीजिए। तो इसी तरह से ही ये फलाही इदारे और हुकूमत, जिनके पास वसाइल भी हैं और ज़राए भी हैं, वो मिलकर ही इस मुसीबत से नबरदारदमा हो सकते हैं। अच्छा, सिंध में सख्त लॉकडाउन है, उसके बावजूद केसेस की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी वजूहात आप क्या समझती हैं? जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों ने शुरू में इसको शायद इतना संजीदा नहीं लिया इस मामले को, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हम पर कैसे अप्लाई हो सकता है और हम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी को अगर ये सिम्पटम्स ज़ाहिर हो भी गए तो वो उन्होंने बताया नहीं, वो टेस्टिंग नहीं हुई। टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल्स ने कहा कि उनके पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे, उनके पास वो तमाम चीज़ें नहीं थी। तो उस इसकी वजह से ये हुआ कि ये चीज़ें बढ़ती गई और लॉकडाउन, चाहे लेकिन लॉकडाउन जो हो भी गया तो वो शायद इतना मौसर नहीं था कि वो उसके हमें नताइज इतने मिलते, लेकिन जो भी हुआ बहुत ठीक हुआ। लेकिन अब चूँकि जो जो शुरू में एक चीज़ हो गई और छुपाई गई और अब वो बहुत ही यकीनी था कि इसका नतीजा ऐसे निकलेगा और एकदम से बहुत सारे केसेस जो है वो खुलकर सामने आ जाएँगे, जो अब हो रहे हैं। तो इसमें भी हमने ये देखा है कि ये वाला जो हफ्ता जो इस अभी चल रहा है और हुकूमत ने 30th ऑफ अप्रैल तक उसको बढ़ा भी दिया है।
लेकिन हम कल से टीवी भी देख रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं कि जी चहल पहल ज्यादा हो गई है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ये हो गया कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि नाई की दुकान भी खुलेगी तो टेक्नीशियन भी आएगा, तो इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, वगैरह वगैरह। तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। अब इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, नाई और ये अगर आ जाते हैं तो उनकी उनके उनको जहाँ से पुर्जे मिल रहे हैं वो दुकानें तो नहीं खुल रही हैं, तो उन्होंने भी खोलने की कोशिश की। कराची में मोबाइल मार्केट खोलने की कोशिश की गई। उसी तरह से आपने देखा कि जो ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी अपनी मीटिंग्स की और उन्होंने डिफाई किया हुकूमत को कि नहीं जी हम तो खोलेंगे। आपने ये भी देखा कि उलमा की तरफ से भी इस तरह के बयानात आने लगे कि नहीं जी हम तो तरावी भी पढ़ेंगे और हम तो मस्जिदें खोलेंगे। मस्जिदें खोलने के लिए उनको मना तो किसी ने, मस्जिद तो खुली हुई है, अजानें भी आती हैं, आपने अभी अजान सुनी, और इसी तरह से लिमिटेड नंबर अलाउड भी हैं। और उसका खुदा का भी हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है कि अगर कोई इस तरह की खतरे वाली चीज हो तो इंसानी जान को बचाना सबसे पहला बड़ा फर्ज है। और उसके बाद, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है, उसको जबकि बंद कर दिया गया है। रोज़ा रसूल जो है वहां भी सिर्फ अजानें होती हैं और लोगों को मना कर दिया गया है। तो ये बात यह है कि अल्लाह तो हर जगह हाजिर है और वो सुनता है, और नमाज आप कहीं भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, मस्जिद में जाना भी बहुत मुस्तहसन अच्छा कदम है, लेकिन हुकूमत अगर कोई चीज कह रही है तो उसको सुनना भी हमारा फर्ज बनता है। तो उल्मा तो कोऑपरेट कर रहे हैं और लोग भी अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। अल्लाह न करे कि किसी घर घर में ये तकलीफ हो, लेकिन जब लोगों को पता चला है तो फिर एक आदमी उससे नहीं पता, वो पूरे का पूरा खानदान उसमें आ जाता है। तो हुकूमत अपने तय कोशिश कर रही है, लेकिन कल कल के बाद जो है वो चीजें मुझे कुछ इतनी उतनी मौसर नहीं नजर आ रही हैं जो पहले एक दो हफ्ते नजर आए। और इसमें कुछ अब नंबर जो हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। और उसके अलावा जो फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स के पास होनी चाहिए, जो किट्स होनी चाहिए, वो सुना जा रहा है कि वो आ भी रही हैं, लेकिन शायद नाकाफी है और टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही है कि हो सकता है कि नंबर इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, आपने अभी ताजिर बरादरी की बात की, तो आप कितनी एग्री करती हैं ताजिर बरादरी ने जो ऐलान किया था अपनी दुकानें या अपने कारोबार खोलने का, उसके ऊपर हुकूमत ने अपना ऐलान करके उसको फिर बंद करवा दिया, तो क्या आप समझती हैं कि ताजिर बरादरी का जो ऐलान था वो कंटिन्यू होना चाहिए, या हुकूमत के फैसले को आप ज़्यादा जो है वो तरजीह देती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जी हुकूमत के फैसले को मानना चाहिए। ताजिर बरादरी पता है यकीनन उनको बहुत इकोनॉमिकली दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। सो आर वी, आपको भी इतना ही प्रेशर होगा, हमें भी इतना ही प्रेशर होगा, हुकूमत के ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर अगर ताजिर बरादरी खोलती भी है, चले दुकान खुल गई, हर हर दुकान खुल गई, हम ये देख रहे हैं कि न कनाडा में दुकानें खुल रही हैं, न इसमें लंदन में उन्होंने तो 3 हफ्ते और बढ़ा दिया, और अमेरिका का आप रोजाना हशर देख रही होंगी, सुन रही होंगी, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर दुकानें खुल भी गई तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, अब तो दूसरा भी फ्रेज आ गया है कि सोशल ना बोलें, फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है कि अपने आप को एक दूसरे से दूर रखें। उस पर कौन अमल करेगा? यानी हमारी कल ला इल्मी कह दूं, मैं जहालत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, ला इल्मी कह लूं या जानबूझ के एक एक हठ धर्मी कहूं कि एक पूरे का पूरा खानदान जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठ के और सफर कर रहा है। कल परसों आपने वो देखी होगी वीडियो, जो एक अब पुलिस वाले वो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। 7 लोग एक घर के एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके, मतलब आप कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। और उसके बाद अगर पुलिस वाला कुछ उसको रोके तो पुलिस गालियां खाती है। तो हुकूमत अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकती है गलियों को रोक देना, ताजिरों के साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन ताजिर इस चीज को कैसे कितना यकीनी बनाएंगे कि वो खुद भी तमाम चीजों को फॉलो करें, वो मास्क भी लगाए, वो ग्लव्स भी लगाएं, लोगों को अटेंड भी करें, जो आने वाला है उसको इस चीज का पाबंद करे कि वो तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करे। और एक को अगर दुकान में अंदर आने दे तो 3 को कह के जी बाहर जरा इंतजार करो या दूर दूर रहो, कौन ये करेगा?
क्योंकि जब पैसा कमाने की बात आती है तो वो तो कहते हैं जितने लोग ज्यादा आए मेरे पास, ऐसे न हो कि मैं उसको भगाऊं तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस ह्यूमन साइकोलॉजी से निपटने के लिए आपको एक अपनी हुकूमत को रिट अपनी कायम करना बड़ा जरूरी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं लोगों को हुकूमत की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की तरफ और उनकी जान और माल की हिफाजत उनका काम है। वो कोई शोबदेबाजी नहीं हो रही है, वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए एक बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो एक इकोनॉमिकल फैक्टर आ गया है वो उसको जरूर उसको स्टडी करें, उनको साथ बिठाएं और उस बताएं कि जी आप बताएं कि क्या तरीकेकार होना चाहिए, और अगर कोई तरीकेकार वजह हो सकता है तो फिर उसको अमल दरामद की को कौन यकीनी बनाएगा, ये भी तय हो जाना चाहिए। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा महताब राशिदी साहिबा, वज़ीर आज़म अगला दौरा जो है अपना सिंध का करने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध के मरकज़ से किस चीज़ का मुतालबा अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़रूरी है और किस चीज़ का मुतालबा होना चाहिए? मुतालबे तो देखिए वो सब उन तक पहुंचते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के या तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो अपने अपने सूबे की सूरत हाल वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं। सिंध का भी चीफ मिनिस्टर वो भी बताते हैं। सिंध में मैंने एक अच्छी चीज जो देखी वो ये कि हमें उनकी तरफ से एक्टिविज्म नजर आया है। वो फौरन हर चीज पर प्रोएक्टिव उनकी अप्रोच रही है। फिर मैंने ये भी देखा कि 3 वजीर हैं जो सिर्फ बात कर रहे होते हैं। सिंध हुकूमत के नासिर शाह बात करते हैं, सईद गनी बात करते हैं, मुर्तजा वहाब बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करता। तो ये 3 लोग जब बात कर रहे होते हैं तो गोया वो पूरे एतमाद के साथ अपनी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, हर जो भी वजीर है वो वही बात कर रहा होता है। फेडरल गवर्नमेंट में हमें काफी नजर आती हैं चीजें कि हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो गलत बात है वो ये कि विफाक के जो वजीर हैं वो सिंध से ताल्लुक रखने वाले वो बहुत ही जारहाना अंदाज उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। हुकूमत पर जो है वो बड़ी तनकीद बहुत जारहाना अंदाज में की जाती है। उनकी अच्छी बातों को इग्नोर करके और अजीबोगरीब बातों को सामने ले आते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। इस माहौल में लोगों को इस तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। हमें एक गाइडलाइन चाहिए सब लोगों का, चाहे वो उनका ताल्लुक विफाक से हो, एक पार्टी से हो, दूसरी पार्टी से हो, तीसरी पार्टी से। एक आम आदमी की उससे गरज नहीं है कि आप कौन है। आम आदमी की गरज अब ये है कि मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, मेरा तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या अगर मैं फलां पार्टी का हूं तो मैं यहाँ सिंध में देखूं या मैं विफाक से बात करूं, मतलब ये चार तमाम चीजें हैं। तो ये जो तरीकेकार है वो कोई पसंदीदा बात तो नहीं है। और आपने देखा कि 3 दिन से फिर क्या होता है, जो असल इशू है बीमारी का और उसमें से निकलने का, वो साइड लाइन हो जाता है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी जो है वो सामने आ जाती है। तो ये चीज हमारे हक में नहीं जाती। ये आप लग रहा है कि हम डिवाइडेड हैं, और ये बीमारियां भी अगर हमें एक जगह पर मुत्तफिक नहीं कर सकती और जगह खड़ा खड़ा नहीं कर सकती तो फिर क्या कयामत ही हो सकती है, जिसमें तो फिर कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं। तो अगर वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो कि शुरू में ये भी कहा गया कि उन्होंने बहुत ही इग्नोर किया हुआ है सिंध को, उन्होंने आज नहीं रहे हैं, वो फला जगह गए फला जगह गए, सिंध में नहीं गए। तो उनको आना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, कराची बहुत बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान कहते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ बसे हुए हैं, दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो इसके तकाजे कुछ ज्यादा ही हमें डिमांड करते हैं। लेकिन उसके अलावा सिंध के जो देहात हैं मुझे तो उससे डर लग रहा है, क्योंकि वहां भी अगर अगर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और वो वहां वहां उनके लिए फील्ड डे है, मतलब ये घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? आई डोंट थिंक एनीबडी इज मॉनिटरिंग दैट। तो ये हुकूमत अगर सिर्फ कराची को संभाल ले तो बड़ी बात होगी, और खुदा न खाता अगर ये चीज देहातों तक पहुंच गई तो क्या होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं उनको सामने अगर किसी भी किस्म के मुतालिबात पेश किए जाते हैं तो उनको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, और जहां उनकी भी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी इस चीज को संजीदगी से लेना चाहिए।
अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पीछे उनको फेंकना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सिंध हुकूमत कह रही है, उन पर उनको एतबार करना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनको ज़रूर उनको मानना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप वफाक की और सूबों के बयानात के तज़ाद क्यों है? आप क्या समझती हैं कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम जाते जा रहे हैं, अपनी जो है वो जो हमें नहीं अमवात होनी चाहिए थी, जितनी कि हमें इमदाद मिली थी, जितना जो है सपोर्ट किया गया हमारे पाकिस्तान को, तो उस लिहाज से तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी सूबों के और वफाक के बयानात में इतना तज़ाद क्यों है? जी, बड़ी बदकिस्मती है। बात ये है कि हालाँकि पीटीआई ने कराची में बहुत ज़्यादा सीट्स ली हैं, इससे पहले उन्होंने नहीं ली थी और उन्होंने एमक्यूएम जो इतनी बड़ी पार्टी होके गुज़री है और इस वक़्त वो अंडर प्रेशर है। उन्होंने बहुत सारी सीट्स जो थी वो उन्होंने हारी हैं इनके सामने और इन्होंने अपना जो एजेंडा दिया था वो लोगों को बहुत अच्छा, खुशकुन और आगे बढ़ता हुआ था। और आपको एक दूसरी क़यादत मिली, एक दूसरी पार्टी मिली एमक्यूएम के सामने जो सिर्फ़ एक होती थी और वो कहती थी कि हम उर्दू बोलने वालों के हम ही नुमाइंदा हैं। तो पहले पीपल्स पार्टी भी होती थी, दूसरी पार्टियाँ भी होती थी, जमात इस्लामी भी होती थी। बीच में फिर एक लंबा गैप आया, एमक्यूएम मैदान में आ गई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उनकी जो चीज़ें थी, हरकतें थी, वो ज़्यादा वायलेंस की तरफ चले गए और बाकी लोग पीछे रह गए। तो उसको हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये टाइम आ गया है तो पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि पीपल्स पार्टी भी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से या जो भी कुछ हुआ है, वो महदूद हो गई है सिर्फ़ एक सूबे में। वो जो विफाक की पार्टी होती थी और सारे सूबों की ज़ंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर का नारा लगता था कि वो मिले हुए हैं सब, वो सिमट के एक सूबे तक महदूद हो गए। पंजाब में उनके वो है ही नहीं, इसी तरह दूसरे सूबों में नहीं है या बलूचिस्तान, मतलब अब यू आर नॉट देयर। अब जब नॉट देयर वाली बात होती है तो पीपल्स पार्टी उस पर उसको अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए विफाक को या तो टफ टाइम देना चाहती है या उनको उनकी कमजोरियों को उछालना चाहती है और उनके लिए एक उन्होंने ये काम किया हुआ है अपने प्रोएक्टिव होने का। उन्होंने ये बताया कि जी हमने पहले कर दिया, आप लोगों ने नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत किया। तो ये चीज़ एक दूसरे के लिए खामखा एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने वाली बात है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त वो नहीं है कि लोग आपकी इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। वक्त ये है कि लोग ये कहें कि जब मैं तकलीफ में था, एक आम आदमी तकलीफ में था, तो मेरी हुकूमत वो अपनी चीजों से कितना ऊपर उठ के अपने जाती जो मफादात थे उनसे बाहर निकल के और जो सियासी उनके तनाज़ात से उनसे निकल के उन्होंने एक आम आदमी को कितना कैटर किया, उनकी तकलीफों को का एहसास कितना किया, उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे पीछे फेंका और मिल के उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश की है। हर पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो है वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि जी आप अपनी सियासत को ज़रा इस वक्त कोने में फेंकिए और आप मिल बैठ के हमारी मुसीबतों का हल निकालिए, क्योंकि हम इसमें कोई खुश नहीं होगा कि वो उसको बुरा भला कह रहा है और वो उसका बुरा भला कह रहा है। आप ये देखिए कि वक्त इतनी कीमती चीज है। शाम 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक का जो वक्त है, उसमें आप बजाय इसके कि एक इत्तेहाद का पैगाम दें, आप टेक्निकलिटीज पे बात करें, आप सेहत के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, आप सक्सेस स्टोरीज की बात कीजिए, आप अच्छे लोगों को सामने लेकर आइए, उनके उनके तजुर्बों से और उनकी बातों से फ़ायदा उठाइए। आप ये नहीं कर रहे हैं। आपने हमें बिल्कुल आप कोई भी पैनल देख लीजिए, एक फलां पार्टी, एक फलां पार्टी, एक फलां पार्टी, 4 मुर्गे, 3 मुर्गे और एक एंकर, और वो बारी-बारी सबको एक दूसरे से लड़ा भिड़ा के और जिन्ना न प्रोग्राम की इब्तिदा का पता होता है, न प्रोग्राम की इंतहा का पता होता है कि नतीजा क्या निकला। तो नतीजा वही निकलता है कि हम कल भी लड़े हुए थे, हम आज भी लड़े हुए हैं। हम तो किसी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मुत्तहद नहीं होंगे। तो नतीजा ये निकलता है जो कि कोई अच्छा पैगाम नहीं होता। और आप यकीन करें कि हमारे जैसे लोग जो हैं, अब कम से कम मैंने
تو یہ جو ٹاک شوز ہے میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فلاں آدمی کیا بات کرے گا، فلاں پارٹی والا کیا کہے گا اور فلاں پارٹی والا کیا کہے. اٹ از پریڈکٹیبل. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا بولیں گے، کوئی نئی بات کوئی نہیں کہنے والا ہے. تو ہمیں کچھ اور سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے، جن کا کوئی ہیلتھ کو جاننے والے ہوں، کوئی ڈاکٹرز ہوں، کوئی رفاع عامہ کا کام کرنے والے ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں. بچوں کی پڑھائی کی بات ہونی چاہیے، نوجوانوں کی نا امیدی کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے. عورتوں کو، گھر بیٹھی عورتوں کو، جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو کوئی راہ دکھانی چاہیے. اس مایوسی کے اس میں سے نکالنے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہم سیاسی جھگڑے ہم نہیں ڈیزرو کرتے ہیں. اس وقت تو لوگوں کو اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے، اس نے کمال کر دیا اور وہ آسمان پہ اتر گیا. یہ چیزیں اس وقت ہمیں تو ہمارے دل کو نہ اچھی لگتی ہیں، نہ کانوں کو اچھی لگتی ہیں. تو میرا خیال ہے دس از ہائی ٹائم کہ ان کو تھوڑا میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور ان جھگڑے فسادوں سے باہر نکل کے ایک عام آدمی کے تکلیف کا احساس کرتے ہوئے وہ ان کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مہتاب راشدی صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور آپ ایک لاسٹ میسج جو ہے ہماری عوام کو دے دیجیے جو آپ دینا چاہتی ہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا وقت ہماری زندگیوں میں آئے گا. فلموں میں دیکھتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج ہم اس سے خود گزر رہے ہیں. لیکن جو میرا ایمان ہے اور جو میرے رب نے بتایا ہے، دو چیزوں کو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ نہ آپ کتنے بھی پاورفل ہوں، کتنا بھی بڑا ملک ہو یا غریب ملک ہوں، اس وقت سب ایک ہے. نہ ٹرمپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کا کوئی حل نکال سکے، اور نہ کوئی غریب ملک. سب ایک ہی طرح سے کرے گا. میکسیکو اگر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ خبردار کوئی امریکن میری سرحد کراس نہیں کرے گا، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے اور کیا بتایا جائے گا کہ اللہ بڑا ہے. تو میں آخر میں یہی کہوں گی کہ مایوسی کفر ہے. آپ حوصلہ رکھیے. حکومت یا جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے اور دوسروں کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے، ان اقدامات کو آپ بالکل سنجیدگی سے لیجئے، سنیے، عمل کیجئے. جو اچھا وقت نہیں رہا تو خراب وقت بھی رہنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی گزر جائیں گے. لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنا کم سے کم نقصان ہمارے ہاتھ سے یا ہماری وجہ سے اگر ہو رہا ہو تو اس کو منیمائز کریں، کم کریں، اور خدا کرے سب سلامت رہیں. آمین آمین. تھینک یو ونس اگین آپ کا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو مہتاب راشدی صاحبہ سے بہت اچھی اویئرنیس کی باتیں جاننے کو ملی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.